that there was a defense committee during Sharjeel Imam's wrongful incarceration. The idea of a defense committee, what is a defense committee? That's the first question we must ask. What is a defense committee? In a state of a campus where a elected representative of students, that is JNUSU, is present. Why there was a need of a defense committee at all? And who are the defense committee? Let me tell you the history. There are a lot of faces here. There are a lot of new faces here. The faces who might not be present when Sharjeel was wrongfully incarcerated. The faces who might not have present during the movement of Shaheen-Bagh. The faces who might not have got a chance to see what all happened during that time. So I am here just to remind you what all happened that time. So the reminder goes like this. The reminder goes like the violence in Jamia happens. And when the violence in Jamia happens, few students protest in Jamia. The students in Jamia protest. And in Shaheen-Bagh, when the elected representative of Shaheen-Bagh is asking, अमानतुल्लाह खान जब पूछ रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ रोजा में जाना है या सड़क में बैठना है, तो लोग बोलते हैं कि हमें रोजा में भी जाना है. लोग बोलते हैं कि हमें फ्राइडे का प्रेयर भी करना है और सड़क में भी बैठना है. And the person behind this statement was Sharjeel Imam. And this is how the movement of Shaheen-Bagh began. And this is how the movement of Shaheen-Bagh continued. And during the movement of Shaheen-Bagh, Sharjeel Imam made sure something that none of the activists across India could make sure in any movement, that this movement shall not be appropriated. This movement shall go on the terms of Muslims, on the terms and conditions of the Muslims. The movement shall not go on any other terms. लेकिन Sharjeel Imam एक बात बोलता था कि शाहीन-बाग में क्यों ये प्रोटेस्ट शाहीन-बाग में शुरू हुआ, लेकिन शाहीन-बाग में क्यों होना चाहिए? वो बोलता था कि शाहीन-बाग में नहीं, ये प्रोटेस्ट होना चाहिए हौसखास में, ये प्रोटेस्ट होना चाहिए मुनिरका में, ये प्रोटेस्ट होना चाहिए सीआर पार्क में, जहां दुर्गा पूजा के लिए लोग पहुंच जाते हैं. बट जब द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, द राइट्स ऑफ बहुजन कम्स फॉर, वहां प्रोटेस्ट के लिए कोई नहीं पहुंचता. व्हाई दिस प्रोटेस्ट वुड हैपन इन द लोकेलिटी जहां पर द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स आर ऑलरेडी हैजर्डस, जहां पर स्टेट ब्रूटलिटी का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है. क्यों वो वहां नहीं होगा जहां पर द सो कॉल्ड allies, the so called progressive liberals, the Hindu upper sections can come together in solidarity of the Muslims, in protest for the Muslims for their rights. And this is how the idea began. तो जब Sharjeel Imam का wrongful incarceration हुआ, on this very place 1000 days back, properly 1000 days back, यहीं पर साबरमती कोई चंद लोग, Sharjeel was not associated with any organization. एक मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ JNU हुआ करता था, जिसमें बात रखता था, जिसको लीड करता था, लेकिन कई चंद लोग अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस, अक्रॉस प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस यहीं पर JNUSU को मिले थे और बोले थे, एक छोटा डिमांड किए थे, क्या JNUSU Sharjeel Imam के सॉलिडरिटी में एक पोस्टर निकालेगा? बेसिक डिमांड, आज बेसिक, आज एनीथिंग कैन बी. और JNUSU उसी टाइम बोलता हाँ बिल्कुल निकालेगा, क्योंकि Sharjeel Imam हमारा स्टूडेंट है. एक दिन गया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का पोस्टर्स आया और वो ऑर्गेनाइजेशन का पोस्टर ऐसे लिखा होता था, आई कंडेम Sharjeel Imam's words, आई कंडेम एंड आई डिसोसिएट फ्रॉम Sharjeel Imam, बट पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अपना राइट्स मिलना चाहिए, रॉन्गफुली इनकार्सरेट नहीं होना चाहिए. ये आया था. तो 2-3 दिन गया और उसके बाद JNUSU का स्टेटमेंट आया, एग्जैक्टली द सेम, कि हम कंडेम करते हैं, हम डिसोसिएट करते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रिजनर को, एक ही इज ए पॉलिटिकल प्रिजनर, उसके वॉइस के लिए उसे क्रिमिनलाइज नहीं होना था. एंड देन JNUSU was expected to lead the movement because in an elected, in a campus where our elected representatives are there, they should ideally lead the movement. But all the time JNUSU has failed and JNUSU has dissociated and JNUSU has condemned a person who has done nothing.
who has done absolutely nothing wrong. And this we should remember. This we should remember. That's exactly why few concerned students from several progressive organizations like BAPSA, Fraternity, MSF, SIO, and a lot of other concerned students came together to create something called JNU Students Defense Committee for Shahidul Imam. And mark my words, no left organization was there. But though the electoral organization of left groups were in the defense committee. And in that, what happened? कुछ दिन गया, JNU का जिस दिन स्टेटमेंट आया, the defense committee asked JNU कि आप हमारे साथ मीटिंग कीजिए, come to a meeting to us. JNU आया था. JNU से कौन आया था? जो तभी आईसा में थे, अभी सपा में है, JNU का जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र यादव. वो JNU के तरफ से आए थे मीटिंग को. और एक चीज डिफेंस कमेटी से हम पूछे थे, व्हाट इज दिस वर्ड्स ऑफ शहजील इमाम दैट यू कंडेम? शहजील इमाम क्या बोलते आप कंडेम करते हैं? उन्हें आंसर पता नहीं था. वो बोले हम कंडेम करते हैं. हम बोले क्या कंडेम करते हो? जो सब कुछ बोले सब कंडेम करते हो क्या? हाँ बोले हाँ. हम बोले कि मुस्लिम स्टूडेंट्स आर बीइंग इनकार्सरेटेड, सीए इज बैड, एनआरसी इज बैड, डू यू कंडेम दैट? नो नो, वी डोंट कंडेम दैट, बट वी कंडेम समथिंग एल्स. व्हाट इज दैट समथिंग एल्स? ही डजंट नो. And that's the whole point. No one in the nation knows what is so condemnable of शहजील इमाम. शहजील इमाम ऐसा क्या किया था ये कंडेम कर लें? ये देश में ये JNU जैसा कैंपस में जहां की प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स brought out pictures to condemn and dissociate from शहजील इमाम. None of them knew what to condemn about शहजील इमाम. And अभी सोमो बोल रहे थे ना, सोमो बोल रहे थे कि एक इंटरवेंशन होता है और एक बातचीत होता है. जब इंटरवेंशन होता है तभी द स्टेट फील्स थ्रेटेंड, द राइट विंग फोर्स फील थ्रेटेंड. व्हाट हैपेंड टू नाजिब? I disagree with Somo. Najib was not called a terrorist or having a link with ISIS or an anti-national before he was forcefully disappeared. He was not even politically active. इंटरवेंशन बातचीत ये दोनों आता ही नहीं है. I was talking to I heard one of the political prisoners talking about the condition of jail. कि वहां एक दलित बच्चा आता है तो उसे जुर्म किस हिसाब से फंसाया गया है? वो जुर्म था कि किसी का ट्रेन से पर्स चोरी किया है. चोरी किया है, पर्स नहीं, चोरी किया है. एंड द दलित चाइल्ड इज रिपीटेडली सेइंग कि मैं ट्रेन में गलती से चढ़ गया और इसलिए कूद गया, और कूद गया इसलिए पुलिस बोल रहा है कि आप चोरी किए हो इसलिए कूदे हो. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई ही वाज इन जेल. एंड उसको जेल में पूछा जाता है, जेल में पूछा था आपका कास्ट क्या है? अपर कास्ट हो, खाना बनाओ, वहां पर रह सकते हो. ओबीसी हो, लॉर्ड ऑफ मैनुअल काम भी दिया जाता है. दलित हो, आपको टॉयलेट साफ करना पड़ेगा. मुस्लिम्स हो, बहुत ब्रूटैलिटी होगा, बहुत मैनुअल वर्क्स दिया जाएगा. एंड द स्मॉल चाइल्ड डजंट नो इवन हिज सरनेम. वो बोल रहा था मेरा नाम इज दिस. उसे बार बार पूछा था नाम बताओ, पूरा नाम बताओ, पता नहीं. तो उसे पूछा कि तुम्हारा जात क्या है? फिर बोला कि मैं चमार हूं. तो उसका हाथ में इतना मारा गया था कि उसका हाथ इतना फूल गया था. उसके बाद उसी हाथ से उसे चक्का लगाया गया कि सबके रूम के सामने पानी लगाओ, पानी लाओ बकेट से. इसमें बातचीत कुछ नहीं है, इसमें इंटरवेंशन कुछ नहीं है. ही वाज नॉट, was he a political prisoner? That's my question. My question to you, who is a political prisoner? Someone who does politics, or someone whose identity is so political that anything that person does, it becomes a matter of politics and matter of crime. I want to assert here, all the marginalized prisoners are political prisoners. It's not the 5-6 names, it's not the victim, it's not Bhima Koregaon 16. It is thousands, lakhs of people in the jail. All of them are political prisoners. And Chakkajam is not just Chakkajam is sedition. But Chakkajam sedition नहीं है. Nothing is sedition. Remember this, nothing in this country is sedition. In a progressive democratic country कुछ भी sedition नहीं हो सकता. क्यों? Because we have right to dissent. We have right to protest. We have right to voice out. And that's exactly why nothing is sedition. That's exactly why all of us coming from marginalized sections are
if we are criminalized, we are political prisoners. It's not 15, it's not 16. And exactly this is why कि ये political prisoner narrative में there are some good political prisoners भी है, कुछ bad political prisoners भी है. किसी को criminal बताया जा रहा है, कोई तो crime नहीं किया है, फिर भी जेल में. This good bad political prisoner doesn't happen. And this is exactly why also Sajjal is a bad political prisoner. नताशा नरवाल और देवांगना का जो केस लड़े थे लॉयर, वो बोल रहे हैं कि नताशा और देवांगना तो हिंदू कम्युनिटी से आए हैं, वो अगर मुस्लिम के लिए काम कर रहे हैं तो सेकुलर है, वो तो कम्युनल नहीं है, लाइक सर्जिल इमाम. दिस वाज द स्टेटमेंट इन द कोर्ट. दिस वाज द स्टेटमेंट इन द कोर्ट कि सर्जिल इज कम्युनल एंड ये सेकुलर. गुड पॉलिटिकल प्रिजनर, बैड पॉलिटिकल प्रिजनर. जेएनयू ये मूवमेंट को नहीं लड़ा है, जेएनयू मूवमेंट से भागा है. हमें याद है कि जिस दिन पहला डिफेंस कमेटी का टॉक इसी जगह पर हुआ था, चंद लोग इधर खड़े थे, 50 लोग, 50 भी नहीं होंगे शायद, और उधर से जेएनयू का एक पैरेलल मार्च आ रहा है. वो मार्च यहीं पर खत्म हो रहा है, वहां पर स्लोगन चल रहा है, इधर स्पीच दे रहे हैं, शायद सोमो ही स्पीच दे रहा था पहला दिन. एंड उसके बाद जब जेएनयू यहां आए, हम बोले कि लेट जेएनयू स्पीक. जेएनयू डिडंट नो व्हाट टू स्पीक. बस ह्यूमन राइट्स बस क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए, बट सर्जिल जो किया है वो गलत है या सही, सर्जिल जो बोला है वो गलत है या सही. मतलब गलत क्या, मतलब वही तो सवाल है ना कि बोलने में गलती क्या है, राइट? मतलब यहाँ पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच का मूवमेंट आप लड़ लिए, आप बोले कि नाम भी कर लिए कि फ्रीडम स्क्वायर, और बोल रहे हैं कि उसको फ्रीडम नहीं है कुछ बोलने का. ये बोलना एक अनफ्रीडम होना चाहिए. दिस इज द नैरेटिव ऑफ योर्स and the person who became the victim of your narrative, that is Sajjal Imam. JNUTA कभी सॉलिडारिटी नहीं दिखाया. इतना दूर तक मैटर आ गया था कि हम सारे टीचर को बोल रहे हैं कि हम यहां पर प्रोटेस्ट तो नहीं कर पाए, टॉक सीरीज करें, आप आ जाइए. बहुत बहाना मिल रहा था. ऐसा भी बहाना मिला कि आई एम मोर ऑफ ए टारगेट ऑफ दिस ब्राह्मणिकल फासिस्ट स्टेट दैन सर्जिल इमाम. कि मैं बोलूंगा तो सर्जिल को और भी दिक्कत होगा. सर्जिल का दैट पॉलिटिकल प्रिजनर का जो हाइप है वो बढ़ जाएगा और सर्जिल को और भी इनकार्सरेट होगा, बहुत ब्रूटैलिटी होगा. व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ ब्राह्मणिकल एरोगेंस इज दिस ऑफ ए प्रोफेसर हु इज वेरी नॉट ए प्रोफेसर, हु इज अ राइटर, हु इज वेरी वेल नोन. ये किस स्टेटमेंट है? द पर्सन हु इज इन 1000 डेज से जेल में है और अभी भी यू रोम फ्री, राइटिंग योर बुक्स, फेरी टेल्स, एंड सेइंग कि सर्जिल के लिए मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं टारगेट हूं. एंड ऑल मेनी ऑफ द प्रोफेसर्स इन जेएनयू मेड लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस. वी वर टायर्ड ऑफ दोज एक्सक्यूजेस. कि किसे हम बुलाए? दोज पीपल हु स्टूड बाय अस, दोज पीपल, दोज टीचर्स हु स्टूड बाय अस, वी गिव आवर सल्यूट, वी गिव आवर थैंक्स कि मूवमेंट हुआ उसके बाद वजह से. और सर्जिल इमाम के बाद का जो डिफेंस कमिटी है वो खड़ा हुआ, और इस डिफेंस कमिटी था इसलिए सर्जिल इमाम का नाम आया. मैं आज के दिन आई वांट टू रिमेंबर पॉल ब्रास who he lost recently. पॉल ब्रास ऐसा एक थ्योरिस्ट है, ऐसा एक हिस्टोरियन है जिसको पूरा भारत के कई मुस्लिम्स, कई बहुजन, कई स्कॉलर पढ़ने लगे क्योंकि जेल ने बोला कि सर्जिल इमाम पॉल ब्रास को कोर्ट के इसलिए एंटी नेशनल है. आई वांट टू रिमेंबर दैट फेनोमेनल स्कॉलर जिसके वजह से ये थॉट पॉसिबल है. जैसे सोमो ने बोला ना कि इंटरवेंशन मैटर करता है. जीएन साई बाबा जिनका बॉडी 90% पैरालाइज्ड है, वो बोल रहे हैं जेल को कि मुझे इस बेसिस पे बेल दो क्योंकि तुम मुझे बोल रहे हो कि आई एम एन नक्सल बट आई हैव माय बॉडी इज 90% पैरालाइज्ड, व्हाट कैन आई डू? एंड द कोर्ट का वर्डिक्ट आ रहा है कि माइंड इज मोर डेंजरस. एंड दिस इज द समरी ऑफ इट. It's not the speech of Sajjal Imam which made him a criminal. It's not the action of Sajjal Imam who made him a criminal. It's not the intervention. It's his thought. So threatening this thought is for everyone. And that's exactly why I'm saying all of us, all the marginalized
people across the country are potential criminals, are potential threats for this country. Until we assert that nothing is sedition, nothing is UAPA, until we assert कि हमारा criminalization is based on because of the identity we uphold, because of the thought we uphold, because of the thought we uphold because of our identity, तब तक इस देश हमें क्रिमिनलाइज करता रहेगा. एंड कोई JNU, कोई JNU कोई JNU स्टूडेंट जो प्रोग्रेसिव सेक्शन से है हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, बट जो हमारे साथ खड़े होंगे वो आज हमारे साथ खड़े हुए हैं. और मैं आप सबको बक्सा फ्रेटर्निटी MSF की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ. यहाँ आए हैं, 1000 दिन के बाद भी आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए आए हैं. आपको जय भीम और हुल जोहार.